Hello guys, good morning. Good morning to one and all present over here. Okay guys, so I'm waiting for a few minutes more, right? Till then check my video and audio clarity. Is it okay? Okay, I hope you got the last lectures. You got the last lecture content. That means what you understood last lecture content, right? आपको समझ में आ रहा है? Last lecture का content जो था वो पूरा समझ में आया था. That all about the ball and all that thing, right? अब probability के अंदर होगा क्या कि जब मैं आप लोग को बताऊंगा ना उससे काम नहीं चल जाएगा, ठीक है? अब you have to do the questions based on that. That means you have to use your GATE previous year book that you got, right? I think सब लोग ने कहीं ना कहीं से तो GATE previous year book लिया ही होगा, है ना? या तो आप लोग को क्लास में से मिला होगा या तो फिर कहीं ना कहीं से यू ऑल आर हैविंग योर गेट प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग मैथ्स बुक्स व्हिच कंटेन्स ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ऑल ब्रांच, ठीक है? मैथ्स के लास्ट के ऑल क्वेश्चंस ऑफ ऑल ब्रांच उसके अंदर होंगे, ठीक है? सो दैट बुक यू हैव टू सॉल्व, फ्रॉम दैट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ गेट फर्स्ट, राइट और नॉट? सबको वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, है ना सब लोग? राइट गाइस, ठीक है? ओके. सो that will give you the practice, that will give you a very good practice of this particular topic, ठीक है? और जितना टेस्ट दो, जितना प्रोबेबिलिटी का ज्यादा तुम्हें क्वेश्चन मिलता है कहीं ना कहीं से, जहां से भी तुम्हें क्वेश्चंस मिले प्रोबेबिलिटी का, उतना क्वेश्चंस तुम सॉल्व करोगे, ठीक है? प्रोबेबिलिटी एंड ये स्टैटिस्टिक्स का जो भी आप लोगों को क्वेश्चन मिलता है, जनरली स्टैट्स पार्ट बहुत कम होता है, प्रोबेबिलिटी पार्ट ही ज्यादा होता है, ठीक है? जनरली आपका स्टैटिस्टिक्स पार्ट स्टैटिस्टिक पार्ट बहुत ही कम होता है, प्रोबेबिलिटी पार्ट में से ज्यादा पूछते हैं, ठीक है? चलिए, to as I have told you yesterday also guys, I will take only 1 hour class today. That is I will take from only from 8:30 तक ही मैं क्लास ले पाऊंगा, ठीक है आज, right? So I have some urgent work, but I will cover that thing, that half an hour in some another class. Okay, I will cover that thing. I will take one extra class also if it is required for that. Right or not, guys? है ना? I hope you are enjoying the sessions. Right, these are last few sessions which are remaining over here. ठीक है? Probability we will complete and stats we will complete over here. Right? Very good morning. ओके चलिए सब लोग को वेरी गुड मॉर्निंग एंड आई होप ये कल से जो क्लास है, आई थिंक फॉर मोस्ट प्रोबेबली द स्टूडेंट्स आर हैविंग दोज हु आर गिविंग 23 गेट, दे आर हैविंग सम टेक्निकल सब्जेक्ट क्लास, राइट? So this is for then only 22 those students who are giving gate now in 22, they only will be attending my class, right? इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम होगा, राइट? आज से ऐसा हो जाएगा. Because I have discussed the schedule with the management. They are having some fluid mechanics class from today or some digital electronics class for some more students, right? They are having. So the branches are splitting now. They are starting with the core subject for all the branches. Okay. So that might be that might get your you can say that might be very टेक्निकल सब्जेक्ट्स जैसे स्टार्ट हो रहे हैं, स्ट्रेंथ इसके अंदर हम लोग को कम ही दिखेगा. सो ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. इट इज ऑलरेडी 7:30 एंड इट इज अबाउट टू 7:40. सो लेट अस स्टार्ट नाउ. वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर गाइस. वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर. Today we are starting with again the basics of probability and I am continuing from the last lecture only, right? Last lecture जहां पे हमने खत्म किया था ना, वहीं से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके गाइस, आर यू रेडी फॉर दैट? Are you ready? Please give me some response, guys. Okay, chali. Great, great. Okay, let us start now. Let us start. Okay, so now you are having a question again. You are having a question again. A box contains 6 positive numbers and 8 negative numbers. See, एक box के अंदर है ना 6 positive number है और 8 negative numbers है. Now 4 numbers are drawn at random and multiplied together. Okay, 4 numbers are drawn at 4 numbers are drawn at random. 4 numbers are drawn at random and they are getting multiplied together, right? And they are multiplied together. What is the probability that their product is positive numbers? Okay, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि उनका प्रोडक्ट जो है ना वो पॉजिटिव नंबर हो जाए, उनका प्रोडक्ट ये पॉजिटिव नंबर हो जाए, राइट? सो वी शुड हैव द नॉलेज व्हेन बाय प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव नंबर. वी शुड हैव दैट नॉलेज कि हमारा प्रोडक्ट जो है ना वो पॉजिटिव नंबर कब होगा, पॉजिटिव नंबर कब होगा, राइट और नॉट?
ठीक है। सो सिंपल सा केस है कि अगर आप लोग को प्रोडक्ट को पॉजिटिव नंबर करना है और आप लोग के पास टोटल 4 नंबर्स आप ड्रॉ कर सकते हो, सो आपका प्रोडक्ट तभी पॉजिटिव हो सकता है जब आपके पास चारों 4 नंबर पॉजिटिव हो जाए। या तो तुम बोल सकते हो सर अगर मेरे पास, अगर मैं 4 नंबर ले लूं, अगर मैं कोई 4 नंबर ले लूं, उसके अंदर मेरे पास 2 नेगेटिव नंबर्स हो जाए और 2 पॉजिटिव नंबर हो जाए, राइट और नॉट। और अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो, अगर आप लोग के पास ऐसा भी एक केस आ सकता है कि जहां पे चारों 4 नंबर नेगेटिव आ गए तो भी आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है। इसके अलावा कोई आपके पास केस बचा है नहीं जहां पे आपके नंबर्स जो है ना वो पॉजिटिव हो सकते हैं, राइट। इज दैट क्लियर फॉर द हाउ आई विल गेट द पॉजिटिव नंबर ओवर हियर if I take all the 4 numbers are positive, or if I take all the 4 if I take 2 numbers positive and 2 number negatives, or if I take all the 4 numbers negative, that means whenever you want to make any positive number out of negative and positive numbers, always you have to remember your positive number or negative number you should have to take in the even number format, right। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 4 इधर पॉजिटिव, इधर 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, चारों 4 नेगेटिव, मतलब इवन नंबर्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आपको बॉक्स में से लेने पड़ेंगे, तभी आपका पॉजिटिव नंबर बनेगा, तभी आपका पॉजिटिव नंबर बनेगा, राइट और नॉट। सो इफ आई वांट टू टेक, if I want to get over here the 4 positive numbers and there are 6 positive numbers, so out of 6 positive numbers, what are the ways to select 4 positive numbers? So that will be 6C4, that will be 6C4, correct। And it is written over here, or then it is written over here, or now out of again these 4 positive numbers, what are the ways of selecting 2 positive numbers out of 6? So that will be 6C2, and 2 negative numbers out of 4, that 2 negative numbers, so that will be your, again there are 8 negative numbers and 2 negative numbers out of that, that will give me 8C2. And then and it is again written or, so or means plus, and there are again 4 negative numbers, so out of 8 negative numbers I want to select 4 negative numbers, so that will give me 8C4, that will give me 8C4, and this whole divided by, I want to take 4 numbers out of total 14 numbers, I want to take 4 numbers out of this 14 numbers, so that the selection method for that is 14C4, the selection method for that is 14C4. So this is your favorable cases, this is your total cases, right or not। 14C4 is what? Selecting 4 numbers out of 14 numbers. So these are your total cases, and these are your favorable outcomes, these are your favorable outcomes guys, these are your favorable outcomes। क्लियर, ये आपको बात क्लियर होती है कि नहीं होती है, बताइए मुझे। So these are your favorable outcomes, and these are your total number of outcomes. So if you calculate this thing over here, अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हैं ना गाइस, अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आप लोग का जो आंसर इधर बन जाता है वो 505 डिवाइडेड बाय 1001 बन जाता है। आपका आंसर जो है ना वो 505 डिवाइडेड बाय 1001, that will give you the answer 505 divided by 1। just calculate this thing, you should you know how to calculate this type of thing, right। आप लोगों को पता होगा कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा 505 डिवाइडेड बाय 1001। क्लियर है गाइस? चलिए, सबको समझ में आया? यस और नो, प्लीज टेल मी अंडरस्टूड और नॉट, अंडरस्टूड और नॉट, वेदर यू गाइस गॉट दिस थिंग और नॉट। चलिए बताइए मुझे, फास्ट थोड़ा सा रिप्लाई कर दीजिए आप लोग। वेरी गुड गाइस, सो यू गॉट क्लियर, राइट और नॉट? ग्रेट। नेक्स्ट आगे, ओके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ेंगे तो उसके अंदर हमारे पास हो गया नेक्स्ट। ओके, नाउ द वी आर हैविंग अगेन, वी आर गोइंग टू दिस द बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। नाउ दैट वाज योर लेक्चर नंबर 2, right or not? The basics of probability lecture number 2, that was, now this is your again the basics of probability lecture number 3, right? This is our basic of probability lecture number 3 guys, right? So I am writing again the heading over here. This is basics of probability lecture 3. So there are in all total 3 lectures only for the basics of probability, and then we can start with the conditional probability, right? मतलब आज इवनिंग के क्लास में मैं आपको conditional probability and Bayes theorem के बारे में बताऊंगा। आज इवनिंग के क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग करने वाले, राइट और नॉट? कंडीशन, प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। सो दिस इज योर बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी थर्ड पार्ट। बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ये आप लोग का थर्ड पार्ट हो गया, ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया। चलिए आगे, अब इसके अंदर भी क्वेश्चन से डायरेक्ट हम लोग देखेंगे, और इसके अंदर अब मेरे ख्याल से डाइस के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, राइट और नॉट गाइस? इसके अंदर हम लोग डाइस के क्वेश्चन ज्यादा रखेंगे, ठीक है। सो डाइस के क्वेश्चन जो होते हैं उसके अंदर आप लोग के पास ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। अगर मेरे पास डाइस का क्वेश्चन आया तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए
तो आप लोग इधर देख सकते हो, सिंगल डाई इज थ्रोन ट्वाइस। ओके, सबसे पहले तो एक डाइस को तुम दो बार जो है उसको रोल कर रहे हो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज 6 नाउ? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज 6? नाउ you guys want to write the sample space of this, and if you want to write the sample space, the sample space will be like this: 1 1. देखो दो डाइस आप टॉस कर रहे हो तो सैंपल स्पेस दोनों में 1 आ सकता है, फिर 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, वैसे करते करते 1 6. करेक्ट? then again it can be 2 1, then 2 2, दोनों डाइस में 2 आ गया, फिर it can be 2 3, right? if you write like this, it लास्ट में आपका पास आ जाएगा 2 6. तो वैसे करते करते आपके पास इधर से 6 1 6 1 और 6 2, फिर 6 3 6 3, और फिर आप लिखोगे ऐसे करते करते लास्ट में आपके पास आ जाएगा 6 and 6. लास्ट में आपके पास आ जाएगा 6 and 6. राइट और नॉट? सो देयर आर टोटल, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? डाइस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज 36. मतलब हमने क्या किया कि आपको दो बार डाइस को रोल करना है, तो एक डाइस के टोटल 6 आउटकम्स होते हैं एंड दूसरे डाइस के टोटल 6 आउटकम्स होते हैं, तो टोटल 6 into 6 आपका 36 नंबर एलिमेंट्स बनता है. टोटल आपका 6 into 6 टोटल 36 एलिमेंट्स बनना चाहिए. ठीक है, right? Or if you are throwing a dice for 3 times, then it will be 6 into 6 into 6. आपका 36 into 6 216 के अराउंड आप लोग का हो जाना चाहिए वो. ठीक है, 6 into 6 into 6 वहां पे आप लोग का हो जाना चाहिए 216 अगर 3 बार आप डाइस को रोल कर रहे हो. ठीक है, सो दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस. टोटल मेरे एलिमेंट सैंपल स्पेस के अंदर इतने हो जाएंगे. नाउ व्हाट आई वांट टू फाइंड देयर प्रोडक्ट इज 6 गाइस. देयर प्रोडक्ट इज 6 गाइस. ओके, वेरी गुड. चलिए, सो प्रोडक्ट 6 के बारे में, तो प्रोडक्ट आपका 6 जो है ना, प्रोडक्ट 6 आपका कब आ सकता है? सो यू नो दिस गाइस, I am having an event in which I require product 6, so you will write it can be 2 into 3, it can be 3 into 2, right? Any other thing? Yes, it can be 6 into 1, it can be 1 into 6, it can be 1 into 6. So the probability of product 6, right? Probability of P is equal to 6, that is product 6 is equal to, there are total 4 elements out of 36 elements. So this probability I will get as 1 by 9 guys. This probability I will get as 1 by 9. I hope you guys got cleared about what is the meaning of product 6 and what are the number of elements in sample space, right? समझ में आया? एलिमेंट सैंपल स्पेस के अंदर टोटल 36 एलिमेंट्स होने चाहिए, और वो 36 एलिमेंट्स के अंदर से 4 ऐसे आपके ऑर्डर्ड पेयर्स है जिनका प्रोडक्ट 6 हो जाता है. क्लियर है सब लोग को गाइस? सब लोग को क्लियर है, राइट? आर यू ऑल गाइस आर लिसनिंग ओवर हियर? आपको सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए मुझे. यस और नो, यस और नो. वेरी गुड. चलिए बताइए. नेक्स्ट. करेक्ट. ठीक है, ग्रेट. नाउ द सेकंड पार्ट इज you can see over here, second part is you are getting a doublet, right? तो doublet मिलने की probability कितना? This is very simple to calculate also, right? कि आपको doublet मिल जाए उसकी probability कितनी हो जाए. तो अगर आप देखोगे doublet मिलने की probability, so doublet के लिए आप लोग के पास 1 and 1 होना चाहिए, 2 and 2 होना चाहिए, वेरी गुड, 3 and 3 होना चाहिए, फिर 4 and 4 होना चाहिए, फिर 5 and 5 होना चाहिए, एंड 6 and 6 होना चाहिए. ये चीज आप लोग याद रखोगे, 6 and 6 आप लोग को होना चाहिए, राइट? सो दिस इज 6 upon 36. 6 upon 36 ये आप लोग का आंसर हो जाता है 1 by 6. 6 upon 36 आपका आंसर हो गया 1 by 6. ये आप लोग का आंसर हो जाएगा 1 by 6. 6 upon 36 डबलेट की प्रोबेबिलिटी हो गया आप लोग, right or not? So you guys got clear what is the probability of doublet? That is will be 1 by 6. Now the third most important thing is what? The third most important thing is you are getting the sum of the outcomes is at least 10. मतलब sum 10 आ गया तो भी चलेगा, sum 10 से ज्यादा आ जाए तो भी चल जाएगा. एटलीस्ट 10 के बारे में आपको पूछा है, तो सम आपको 10 आ गया, या सम आपका 11 आ गया, या सम आपका 12 आ गया, उसमें से कोई भी एक आपका सम चल सकता है, राइट और नॉट? सो द थिंग इज व्हाट आई वांट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम at least 12, sum at least 10, sorry, sum at least 10, right? I want the probability of sum at least 10. चलिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे गाइस? कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें सम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, राइट? सबसे पहले हमको सम के बारे में नॉलेज होना चाहिए. तो जब तुम दो डाइस थ्रो करते हो तो व्हाट इज द सम, राइट? सम क्या क्या आ सकता है? चलिए, इधर मैं आपको सिर्फ सम क्या होता है वो चीज बता दे रहा हूँ इधर साइड पे, राइट? एक हम लोग उसी के लिए बनाते हैं.
ओके अब आप जब दो डाइस थ्रो कर रहे हो ना, तो सम आपका इधर 2 आ सकता है, देन 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है, राइट। इतना सम आप लोग का आ सकता है, ठीक है। जब आप दो डाइस को रोल करोगे ना, तो मैक्सिमम सम आपका इतना आ सकता है। आप देख सकते हो इधर से, सी ओवर हियर, आप लोग जब इसको जब आप ऐड करोगे, ये जो लाइन को आप ऐड करोगे, तो आपका सम आ जाएगा 1 and 1। तो ये सम इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तुम ये वाली लाइन को ऐड करोगे ना, ये वाली लाइन को, तो सम इज इक्वल टू आपका 3 के बराबर आ जाएगा। ये सम 2 हुआ, सॉरी सम 2 हुआ, ये सम 3 के बराबर आ जाएगा। तुम अगर इस लाइन को ऐड करते जाओगे ना ऐसे, इस लाइन को ऐड करते जाओगे ना ऐसे, तो आपके पास सम इज इक्वल टू, गाइस सम इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ऐसे करते करते अगर तुम ये वाले लाइन को ऐड करोगे ना, ये वाले लाइन को, तो इसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स आपको दिखेंगे। ये आपका सम इज इक्वल टू 7 के बराबर आएगा। सम इज इक्वल टू क्या आएगा, 7। और तुम ये ऐसे लाइन ऐड करोगे, तो ये आपका सम इज इक्वल टू 8 के बराबर आएगा। ऐसे कोई लाइन ऐड करोगे तो सम इज इक्वल टू 9 आएगा। लास्ट में आपका सम इज इक्वल टू आ जाता है 12। लास्ट में आपका सम इज इक्वल टू आ जाता है 10। सो अगर ऐसे तुम लोग डायगोनल एलिमेंट्स को अगर तुम लोग ऐसे ऐड करते जाओगे ऐसे, तो आपका समेशन का एक अच्छा सा आपको पैटर्न मिल जाएगा, राइट। समेशन का वैल्यू मिल जाएगा। समेशन 2 कब आ सकता है, तो आप लोग को मिलेगा, देखो 1 और 1 आए तो 2 आ जाएगा। सम 3 कब आ सकता है, तो 2 और 1 आ जाए, और 1 और 2 आ जाए, तब सम 3 आ सकता है। सम 4 कब आ सकता है, सो 1 और 3 सॉरी 3 और 1 आ जाए, या 2 2 आ जाए, या 1 3 आ जाए। वैसे अगर देखने जाए, तो आई एम गिविंग यू वन शॉर्टकट टू रिमेंबर द व्हाट, आई एम गिविंग यू वन शॉर्टकट टू रिमेंबर दैट हाउ दिस समेशन इज कमिंग, राइट। मतलब ये सम ये कब आ सकते हैं, तो देखो हमेशा आप लोग ये बात याद रखना कि सम 2 जो है, सम 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। देन लास्ट सबसे मैक्सिमम सम आप लोग का जो, मतलब सबसे मैक्सिमम जो है आप लोग का सम 7 आने के सबसे ज्यादा ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। मतलब सम 7 जब आएगा ना, तब ऑर्डर्ड पेयर सबसे ज्यादा होगा। देन 8 आएगा, देन 9 आएगा, देन 10 आएगा, देन 11 आएगा, देन 12 आएगा। सो फर्स्ट यू हैव टू मेक द शेप ऑफ तिलक, राइट। कभी भी को आपने देखा होगा कोई रिलीजन का तिलक जो होता है ना, वो ऐसे शेप के अंदर रहता है, राइट और नॉट। So first you want to make this shape like tilak, you have to write all the sum like this: sum 2, sum 3, sum 4, sum 5, sum 6, sum 7, sum 8, sum 9, 10, 11 and 12। and always you want to remember that sum 2 or 12, देखो आप देखो ध्यान से देखोगे, एक चीज ध्यान से देखोगे इधर से, सम 2 जो सम 2 आया, उतने ऑर्डर पेयर सम 12 के लिए होंगे। मतलब सम 2 के लिए भी आपके पास एक ही ऑर्डर पेयर था, तो सम 12 के लिए भी आपके पास एक ऑर्डर पेयर रहेगा, राइट और नॉट। सो सम 2 और 12 कितनी बार आ सकता है, सम 2 और 12 आपका एक बार आ सकता है। देन सम 3 एंड 11 कितनी बार आ सकता है, तो याद रखने का, जो इधर 3 लिखा ना, उससे एक कम कर देने का, मतलब 2 बार आ सकता है। सम 3 और 11 कितनी बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है। सम 4 एंड 10 कितनी बार आ सकता है, आप चेक करोगे ना, सम 3 कितनी बार, देखो सम 3 जो है वो 2 बार इधर लिखा है ना, देखो 2 1 आ गया या 1 2 आ गया। सो सम 3 आपका जो है ना, वो और 11 जो है वो कितनी बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है। सम 4 एंड 10 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, 4 माइनस 1। सम 5 एंड 9 कितनी बार आएगा, 5 माइनस 1, मतलब 4 बार आएगा। सम 6 एंड 8 कितनी बार आएगा, इधर 6 लिखा है ना, तो उससे एक कम 5। और सम 7 कितनी बार आएगा, सम 7 एक ऐसा नंबर है जो अकेला होता है, और वो आपके पास 6 बार आ जाएगा। सो दिस आर द ऑर्डर्ड पेयर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ये मैंने ब्लैक कलर के अंदर लिखा, वो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है गाइस। ये नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आप लोग को मिलता है, जिसका समेशन 2 या 12 देगा, समेशन 3 या 11 देगा, समेशन 4 या 10 देगा, समेशन 5 या 9 देगा, समेशन 6 या 8 कितनी ऑर्डर्ड पेयर देगा, तो 5 ऑर्डर्ड पेयर देगा। सम 7 कितनी ऑर्डर्ड पेयर देगा, तो 6 ऑर्डर्ड पेयर देगा, राइट और नॉट। क्लियर और नॉट, ठीक है, राइट गाइज। समझ में आया सब लोग को, राइट। सो मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ सम, आई वांट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एटलीस्ट 10। नाउ एटलीस्ट 10 मतलब 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा और 12 भी चलेगा। तो आप देखो 10 के अंदर कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, क्योंकि 3 ऑर्डर पेयर सम 10 लाएगा। फिर 11 भी चलेगा, और 11 भी चलेगा तो उसके लिए 2 ऑर्डर पेयर, और सिर्फ 12 भी चलेगा तो उसके लिए एक और ऑर्डर पेयर। सो 3 + 2 5, 5 + 1 6। So if I want some at least 10, so there will be 6 ordered pairs which will be giving me some at least 12. So that means this is 6 by 36. Again your answer is 1 by 6. Again your answer is 1 by 6, right? Again आप लोग का जो आंसर है ना, वो 1 by 6 आ जाता। समझ में आ रही है गाइस, ये बात समझ में आ रही है सबको, यस और नो बताइए मुझे,
ठीक है, आपका आंसर जो है वो अगेन क्या हो गया, 1/36 हो गया। क्लियर है सब लोग को, ये चीज क्लियर है, यस और नो, राइट और नॉट? चलिए समझ में आ गया ना? वेरी गुड, चलिए। So your answer will be your answer would be what? Your answer would be 1/6, 1/6, that is 6/36. Sum at least 10, sum at least 10, sum at least 10. राइट, सबको पता चला? तो ये शॉर्टकट जो ये टेक्निक आप लोग याद रखना, जब भी ऑर्डर पेयर में समेशन की बात आए दो डाइस के बीच में, तो ये टेक्निक आपको गारंटीड याद रखनी पड़ेगी, तो ही आपका सम का क्वेश्चन एकदम फास्ट वे में सॉल्व कर सकता है। और अगर आप ऑर्डर पेयर ढूंढने गए कि सम एटलीस्ट 10 के, अगर तुम लोग ऑर्डर पेयर अगर ढूंढने आप लोग चले गए, देन इट विल क्रिएट अ chaos, इट विल क्रिएट अ वेरी, मतलब आप ऐसा भी हो सकता है शायद एक आध ऑर्डर पेयर आप भूल भी गए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, शायद एक आध ऑर्डर पेयर आप लोग के दिमाग से निकल गया, राइट और नॉट? सो दिस इज द रियलिटी फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? सम जो है ना वो निकालने के लिए ये चीज आप याद रखना, ये टेक्निक आप लोग याद रखना हमेशा के लिए, देन यू विल गेट योर आंसर, राइट? सो दिस इज योर टेक्निक, ये आपका टेक्निक है, सम के लिए ये टेक्निक हो गया, समझ आ गया? ठीक है, ये चीज याद रखना आप लोग। क्लियर है गाइस सब लोग को? ये चीज क्लियर है एकदम? यस और नो बताइए मुझे, चलिए यस और नो, हाँ या ना बोल दीजिए प्लीज। समझ में आया सबको? राइट गाइस? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ओके, वेरी गुड, चलिए सबको समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते अब हम लोग। नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज व्हाट? A single dice is thrown twice. Now see, the single dice is thrown twice. What is the probability that the sum of outcomes is at least 6? Now the sum of outcomes is at least 6, guys, right? Now I want to find the sum of the outcomes as at least 6. Okay, so now you have to write, the first thing is probability of at least 6. So probability of at least 6 मतलब sum 6 भी चलेगा ना, sum 7 भी चलेगा, sum 8 भी चलेगा, वो सारी चीज चलेगी ना sum, right? So probability of the outcomes, the sum is at least 6. तो again we will count that thing, again we will count that thing. देखो at least 6 मतलब 6 के बाद 7 sum भी चलेगा, और आपका 8 भी चलेगा, 9 भी चलेगा, 10 भी चलेगा ना, 11 भी चलेगा, और 12 भी आपका सम चलेगा, राइट और नॉट? सो यू कैन ऐड ऑल दिस थिंग्स। सम आपका 7 कितनी बार आ सकता है? 6 टाइम आ सकता है, राइट और नॉट? सम आपका 8 कितनी बार आ सकता है? देखो 8, सो 8 आपका सम जो है वो 5 टाइम्स आ सकता है, राइट? 8 सम आपका 5 टाइम्स आ सकता है, 8 सम आपका 5 टाइम्स आ सकता है, ठीक है? देन सम आपका 9 कितनी बार आ सकता है? 4 टाइम्स आ सकता है, इजी टू कैलकुलेट। सी ओवर सम यार आपका 10 जो है वो 3 टाइम्स आ सकता है, सम आपका 11 जो है वो 2 टाइम्स आ सकता है, और सम आपका 12 जो है 1 टाइम आ सकता है। आउट ऑफ दिस 36 टाइम्स, आउट ऑफ दिस 36 टाइम, ठीक है? 5 क्यों लेना पड़ेगा एक और बार? दैट आई नो। सम 6 है ना, सम 6 आपका, ओके सम 6 करेक्ट, सम 6 हम लोग देख रहे हैं, यस यस यस, सम 6 जो है उसके अंदर मुझे एक और बार 5, क्योंकि ये 8 का था, सम 6 को भी हमको ऐड करना है, तो वो भी आपका 5 एक और बार लेना पड़ेगा। सो अगेन आई एम टेकिंग दिस 5 फॉर सम 6, राइट? अगेन आई एम टेकिंग दिस 5 फॉर 6। ओके, नाउ इफ यू काउंट ऑल दिस थिंग, yes, I am, if I am counting all this thing, now my answer would be what? So 6 plus 5 11, 11 plus 4 15, 15 plus 5 20, and 20 plus 6, that will give me 26/36, guys. ये मुझे बता रहा है 26/36, that answer will be 13/18 if you are cancelling out 2 over here. This is 13 twos are, this is 18 twos are. So if I am cancelling out this thing, I am getting answer as 13/28, guys. 13/28. Is that clear for all, guys? Is that clear for all? Right? Are you getting this point? Are you getting this point? Right or not? Now here it is written, the sum of the outcome should be a prime number. Sum of the outcome should be a prime number. Okay, now you guys are knowing what are the prime numbers. So if you write over here, if you see over here again, प्राइम नंबर आपका कौन सा होता है? तो आपको बोलता है सम 2 जब आएगा तब प्राइम नंबर मेरा समेशन होगा, तो वो एक बार आएगा, ठीक है? चलो, सम 2 आएगा तो आपका प्राइम नंबर होगा, तो वो एक बार ही आ सकता है। देन दूसरा प्राइम नंबर सम 3 आए और सम 11 आए, दोनों प्राइम नंबर होंगे, तो आपको 2 बार 2 को रखना पड़ेगा। ये सम 3 आ जाए तब, और ये सम 11 आ जाए तो भी आपका प्राइम नंबर हुआ। सी हाउ इजी यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस, राइट? देन सम 4 और 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, देन सम 5 आ जाए तो भी आपका प्राइम नंबर होगा, मतलब वो 4 टाइम्स हो जाएगा, राइट और नॉट? सम 6 और 8 तो आपका प्राइम नंबर नहीं है, बट सम 7 आ जाए तो भी आप लोग का प्राइम नंबर हो गया। सो दिस इज योर आंसर। इफ यू डिवाइड इट बाय 36, दिस विल गिव यू द आंसर एज
2 plus 2 4, 4 plus 4, 2 plus 2 4, 4 plus 4 8, 8 plus 1 9, 9 plus 6 is 15 by 36. You will get as the answer 15 by 36. You will get as 5 by 12. 5 by 12 आपका आंसर हो जाता, इधर से आपका 5 by 12 आंसर हो जाता, राइट राइट गाइस। आई होप यू गाइस गॉट दिस पॉइंट, यस और नो, बताइए मुझे, समझ में आया? सब लोग को समझ में आया? ठीक है, सम मुझे प्राइम नंबर पूछा गया है, सम नंबर प्राइम, सम इज प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर का आपको देखने का, प्राइम नंबर 2 हो सकता है, सम 3 आ जाए तो भी प्राइम नंबर हुआ, सम 11 आ जाए तो भी प्राइम नंबर हुआ, सम 5 आ जाए तो भी मेरा प्राइम नंबर हुआ, सम 6 आ जाए तो भी प्राइम नंबर हुआ, 7 आ जाए तो भी मेरा प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, वापस वही वापस बताया मैंने कथन, अब समझ में आया ना कि सम 2 कितनी बार आ सकता है, सम 3 कितनी बार आ सकता है। ये डायग्राम अगर आपके पास हो, ये डायग्राम आपके पास हो, तो सम का कोई भी क्वेश्चन जो है ना 2 डाइस के लिए, वो आपका एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा, वो आपका एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो तुम लोग, यस और नो, राइट? नहीं कर सकते ना, ये 3 के लिए है ही नहीं, ये सिर्फ ओनली, दिस इज ओनली फॉर 2 डाइस। 3 डाइस के लिए ट्रिक ही नहीं है गाइस, वो तो बहुत बड़ा बन जाता है ना उसका नंबर ऑफ ऑर्डर पेज उसके अंदर ज्यादा। दिस इज ओनली फॉर 2 डाइस, ओनली फॉर, क्योंकि 2 डाइस के ज्यादा तक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम लोग ने ये ट्रिक वहां पे बनाई थी, राइट? 2 डाइस के क्वेश्चन ज्यादा होते, बट अगर 3 डाइस के आ रहे तो फिर उसका तो हम लोग को एक्चुअल में कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट विल बी समवॉट स्लाइटली लेंथी प्रोसेस, बट अगर होता है तो हम लोग को करना पड़ेगा, राइट? अगर क्वेश्चन पूछ लेंगे ना तो वो तो आपको अपने से करना पड़ेगा, राइट? सो लेट अस सी नाउ गेट 2017 गाइस। आज हम देखेंगे 2017 का 1 मार्क क्वेश्चन गाइस, राइट? लेट अस सी नाउ गेट 2007 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, चलिए 2007 का 1 मार्कर एक क्वेश्चन है, सी हो रही है 1 मार्कर क्वेश्चन। ओके, 2007 1 मार्क क्वेश्चन, कैन यू सी नाउ, राइट? आप लोगों को दिख रहा है ना? 3 फेयर क्यूबिकल डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ओके, टोटल 3 डाइस थी जो साइमल्टेनियसली थ्रो किया गया था। The probability that all 3 dice have same number of dots on the faces showing up is dash. The probability that all 3 dice have same number of dots on the faces showing up is dash. Showing up मतलब all 3 number, मतलब आप लोग के पास सिंपल, all 3 dice have same number of the dots, all 3 dice are having same number of the dots। तो पहले तो 3 डाइस है ना, तो आप लोग के पास देखो सेम 3 नंबर कब आ सकता है, तो जब तीनों में 1 हो जाए या तीनों में 2 हो जाए तो भी सेम 3 डॉट्स आएगा। वैसे करते करते देयर आर टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर्स यू आर हैविंग which will give you the same dots on all the 3 dice। so these are total 6, but now divided by, you have to do 6 cube. Why? Because you are throwing now 3 fair cubical dice, you are throwing now 3 fair cubical dice, right? 3 fair cubical dice, so divided by 2 1 6, तो एक 6 निकाल दोगे इधर से, so it is 1 by 6 square, 1 by 6 square। your answer is equal to 1 by 36 guys, your answer is 1 by 36। ये ऐसे इजी क्वेश्चन पूछते हैं ना, देखो ये गेट क्वेश्चन है ना, आप लोग को लगता होगा सर ये तो बहुत ही इजी है, ये गेट क्वेश्चन है सर। देखो ये 2017, हम इसको रिसेंट बोल सकते हैं, रिसेंट जो है क्वेश्चन इसको बोल सकते थे। तो 1 मार्कर, वेरी सिंपल, डायरेक्टली यू कैन राइट 1 by 36 over here, 1 by 36 over here, right? I hope you guys got this point, yes or no, बताइए मुझे। चलो आप लोग को ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ना आप लोग को? यस, वेरी गुड, चलिए वेरी गुड, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट आया मेरे पास। ओके, तो बिफोर द नेक्स्ट थिंग, अभी तक हम लोग ने बोला था फेयर डाइस, राइट? बिफोर द नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू टेल यू, फेयर डाइस मतलब फॉर ईच आउटकम द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल, फॉर ईच आउटकम। फेयर डाइस मतलब for each outcome probability of outcome is equal, is what equal, मतलब 1 आने की probability equal है, 2 आने की probability भी 1 by 6, 3 आने की probability भी 1 by 6 होती, तो हर एक की probability equal हो जाती अगर आपको बोलते फेयर डाइस। बट अगर आपके पास अनफेयर डाइस आया, अगर आपके पास अनफेयर डाइस आया, या तो हम इसको बोल सकते हैं अनबायस्ड डाइस आया, अनबायस्ड डाइस आया, उसके अंदर क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम इज नॉट इक्वल। प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होगा अगर आपके पास अनफेयर डाइस आया, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आउटकम
each outcome is not equal, right? They are not equal, मतलब 1 का probability कुछ अलग होगा, 2 का probability अलग होगा, right? ऐसा सब होगा. So probability of each outcome is not equal. If it is unfair dice, probability अलग होगा. Unbiased की जगह biased dice, sorry unbiased नहीं, biased dice, sorry, correct. Fair dice मतलब biased dice, right? Fair dice मतलब unbiased dice. Unfair मतलब biased dice, correct. Sorry. So here fair dice, it is unbiased dice. Fair dice is unbiased dice, right? Okay, correct now, correct है, ठीक है. So अगर आपके पास unfair dice और biased dice है, biased dice, so आप लोग का probability जो है ना, आपका जो probability होगा ना, वो not equal होगा. समझ रहे हो? Probability not equal. Now there was a very good question in GATE 2014. I think this is your computer science branch, right? मुझे exactly याद नहीं है. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. देखो गेट के अंदर ये क्वेश्चन कैसा पूछा है. कंसिडर अ डाइस विद द प्रॉपर्टी दैट, नाउ डाइस की प्रॉपर्टी ऐसा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस विथ n डॉट्स शोइंग अप इज प्रोपोर्शनल टू n. ओके, मतलब प्रोबेबिलिटी जितने डॉट्स आ रहे हैं ना, उसकी प्रोबेबिलिटी उसके प्रोपोर्शनल पे. सपोज एक डॉट आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डॉट इज प्रोपोर्शनल टू दैट 1. Probability of 2 dots is proportional to 2. Probability of 3 dots is proportional to 3. Probability of 4 dots is proportional to 4. ये ऐसा बताने जा रहा है. The probability the face with 3 dots showing up is what? The probability the face with 3 dots will show up is what, right? So the most important thing is the question is telling you that the probability of the x is equal to, that is the probability of the number of dots showing, the number of dots showing on the dice is proportional to n. It is proportional to n. Probability of x is equal to n. X is the event. मतलब अगर x is equal to 1 आया ना तो वो proportional to 1 होगा. अगर x is equal to 2 आया ना तो proportional 2 होगा. अगर x is equal to 3 आया ना तो 3 के proportional. अगर 6 आता है ना, मतलब dot 6 आ गए तो proportional to 6 है. So our property of the dice is like this. Probability of x is equal to n is proportional to n. So from this I can write, from this I can write over here, guys. From this I can write the probability of x is equal to n is proportional to n. मतलब हम लिख सकते हैं the probability of, see over here I am writing probability of x is equal to n. I can write as x is equal to n is write as k into n, where k is constant. Where what? K is constant. K आपका constant हो जाएगा. समझ रहे हो तुम लोग? Right or not? So मैंने क्या कर दिया, ये प्रॉपर्टी को k के टर्म्स में लिख दिया, k के टर्म्स में लिख दिया, राइट? k के टर्म्स में मैंने लिख दिया. ठीक है, चलिए. अब एक चीज हमें पता है गाइस, एक चीज हमें पता है कि अगर प्रोबेबिलिटी मेरा अगर x इज इक्वल टू 1 आ जाए, या प्रोबेबिलिटी मेरा x इज इक्वल टू 2 आ जाए, या प्रोबेबिलिटी मेरा x इज इक्वल टू 3 आ जाए, या प्रोबेबिलिटी मेरा x इज इक्वल टू 4 आ जाए, या प्रोबेबिलिटी मेरा x इज इक्वल टू 5 आ जाए, या प्रोबेबिलिटी मेरा x इज इक्वल टू 6 आ जाए, बट सर अगर मैं सारे प्रोबेबिलिटी का समेशन करूंगा तो वो मेरा 1 के बराबर होगा. भले वो अनफेयर डाइस हो जाए, बट मेरा एट द एंड the sum of all the probabilities of dot showing up will be 1, right? So 1, अगर आपका x is equal to 1 आ रहा है, ये proportional to 1 है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 into k. ये प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 डॉट आ रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी है, सो ये 2 into k, ये 3 into k हो जाएगा, ये 4 into k, प्लस आपके पास ये हो जाएगा 5 into k, प्लस ये 6 into k इज इक्वल टू 1 आपके पास आ गया. सो अगर आप इसको ऐड करोगे ना ये सबको, तो आप देख सकते हो ये 6 plus 5 11 हो गया, 11 plus 4 15 plus 3 18 plus 3 21k is equal to 1. So from here I am getting the value of k is what? 1 by 21. इधर से मुझे वैल्यू मिलता है k का 1 by 21. Now I want what? The probability of exactly 3 dots. Right over here it is given. The probability of the face with 3 dots showing up. Probability of saying 3 dots showing up. So probability of x is equal to 3. That is equal to what? 3 times k. So that will give me 3 into 1 by 21. So your answer will be 1 by 7. That will give me the 3k. So 3 into 1 by 21. Your answer will be what? 1 by 7, guys. 1 by 7 आपका आंसर हो जाएगा. समझ आ रही है बात सब लोगों को? 1 by 7 आपका आंसर हो जाता है. ये चलो क्लियर है सब लोग को, राइट? ये क्लियर है. 1 by 7 आपका आंसर हो जाता. So this is probability of x is equal to 3. Your answer would be 1 by 7. Answer will be 1 by 7. Yes or no? बताइए मुझे. समझ आया सबको? Yes or no? Right? Everyone got this thing, guys. Everyone got this thing.
राइट, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। ओके चलो, प्लीज आई वांट अ वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम योर गाइस। थोड़े लोग देखे जा रहे हैं, सिर्फ नहीं समझ में आया तो आप बोल सकते हो, राइट और नॉट, बिकॉज आई कैन नॉट रीड योर फेशियल एक्सप्रेशन ओवर हियर, ठीक है। ओके, राहुल को समझ में आ गया, निकिता ऑल्सो गॉट दिस थिंग, कथन ऑल्सो गॉट दिस थिंग, मीत ऑल्सो गॉट थिंग्स, देवम ऑल्सो क्लियर। ओके, सो योर आंसर इज 1/7। ओके, आंसर आपका 1/7, फिर उसको तुम पॉइंट में जो भी कर सकते हो उसको लिख सकते हो, राइट और नॉट। ओके ग्रेट, वेरी गुड। चल नेक्स्ट, राइट, सो ये आप लोग का एक क्वेश्चन हो गया था, राइट और नॉट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ यू डू ओवर हियर द गेट 2014 2 मार्क क्वेश्चन, राइट, आपके पास जो है वो गेट 2014 का है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन, इधर से आप लोग का जो प्रोबेबिलिटी का जो मेजर पोर्शन था, मतलब कि बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, इधर आप लोग का खत्म हो जाएगा। एंड देन वी कैन स्टार्ट ऑफ विद सिंपल थिंग्स, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। क्लियर है गाइस, ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। तो ये सिंपल आज के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर मेरे जो है, मैंने आपको बोला था आज का सेशन थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, राइट और नॉट, फिर उसको मैं कवर करूंगा। सो वो चीज मैं आप लोग को एक्स्ट्रा जो भी होगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। So four-sided 6 dice. Now 4 fair-sided 6 dice are rolled. See over here. Gate 2014 2 mark question है ये। 4 fair 6-sided dice are rolled. Okay. Total 4 fair dice आपने roll किया. The probability that sum of the results being 22 is x by 1296. ये रिजल्ट आपका जो है ना, sum of the results being 22 is x by 1296. The x value is there, means you have to count the number of favorable cases, right? मतलब आपको x by, देखो सिंपल सा है कि अगर तुम 4 डाइस को रोल करोगे ना तो 6 to the power 4 तो डिनोमिनेटर में आएगा, 6 to the power 4, इधर कुछ भी तुम x नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस लिख दो, बट 6 to the power 4 तो डिनोमिनेटर में आएगा। इसलिए हमको x by 1296 ये लोग ने बोल दिया है, इन लोग ने बोल दिया, ये आंसर मेरा हो जाएगा x by 1296, right? That I am knowing. Now what is x then? What is x? 4 fair 6-sided dice are rolled. The probability that some result being 22, अगर तुम 4 डाइस को रोल करोगे ना तो आपका जो सम है ना वो 22 आना चाहिए। तो आपके पास ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने होंगे जब आपका सम जो है वो 22 आ जाए, सम आपका 22 आ जाए, समझे? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आपका कितना हो गया, तो सम आपका 22 आ जाए। क्लियर, सम आपका 22 आ जाए। वेरी गुड, नाउ वेरी गुड क्वेश्चन, राइट। अब देखो ध्यान से, एकदम सिंपल सी बात समझो कि आपको सम, अगर 4 डाइस रोल होता है, आप लोग मुझे बताना ना, अगर मैं 4 डाइस अगर रोल करता हूं तो मेरा मिनिमम सम तो 4 आएगा। अगर चारों में 1 1 1 आ गया ना, चारों में 1 1 1 आ गया तो मिनिमम सम तुम्हारा 4 तो आएगा, मिनिमम सम तुम्हारा 4 तो आएगा, राइट और नॉट। then you are getting 4, then you can get sum 5 also। अगर एक में 2 आ गया और तीनों में 1 1 आ गया तो so sum 4, sum 5, sum 6, sum 7, sum 8, sum 9, sum 10, sum 11, sum 12 भी आ सकता है, sum 13, sum 14, sum 15, sum 16, sum 17, sum 18, sum 19, sum 20, sum 20 up to where? Sum 21, sum 22, sum 23, then sum 24। तो up to 24 आपका मैक्सिमम आ सकता है, राइट? up to 24 आपका मैक्सिमम सम आ सकता है। Now in the question it is asked sum 22 that is on your higher side। See, sum 22 जो है it is on higher side, sum 22 it is on higher side, हायर साइड के पास है आपका सम जो 22 है ना, वो हायर साइड पे है। मतलब ये सम 22 तभी आ सकता है, मतलब इफ यू यूज द नंबर 6 ऑन द डाइस, मतलब 6 तो आनी चाहिए कहीं ना कहीं, तो आप सम 22 तक पहुंचोगे, बाकी आप सम 22 तक पहुंचोगे ही नहीं। और अगर ऐसा बोला तो सम बीइंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 5, सपोज ऐसा क्वेश्चन पूछा था ना, सम इज 5, तो आप लोअर साइड पे होते हैं, लोअर साइड पे आपको ये देखने का कि लोअर नंबर्स कौन से आते हैं, मतलब आपके सम 5 आने के लिए सबसे ज्यादा आपको 1 किस में आते हैं, वो आप लोग के पास आने चाहिए थे सबके। अगर सम 5 पूछा होता ना तो डाइस पे 1 जिसमें आते 1, तो कोई ना कोई डाइस में आना ही चाहिए था, तो ही आप सम 5 पे पहुंच सकते थे अगर लोअर साइड होता। बट ये हायर साइड के लिए मतलब डाइस के ऊपर 6 आना जरूरी है, डाइस के ऊपर 6 आना जरूरी है। ओके ओके, अब आप देख सकते हो कि अगर मेरे पास 4 डाइस है ना, अगर चारों 4 डाइस में, अगर मैं चारों 4 डाइस में
चारों चार 5 लगा दूं ना, तो ये मेरे को सम टोटल 20 बना के देता है. सो दिस इज द नॉट केस, दिस इज नॉट योर केस, राइट और नॉट. तो चारों चार में अगर 5 आ गए तो आपका सम मैक्सिमम 20 बन सकता है. तो दैट मीन्स व्हाट, मेरा कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए वो 6 और 5 का बना के ही सम 22 बन सकता है. बाकी मेरा और कोई कॉम्बिनेशन 22 तो नहीं बना सकता. 6 और 5 का कॉम्बिनेशन मिला के आपका 22 बन सकता है. कैसे बन सकता है आप देख सकते हो ध्यान से. तो अगर मैं गाइस, अगर तुम लोग देखते हो ध्यान से, सम मुझे 22 बनाना है, सम मुझे 22 बनाना है, राइट. सो मेरे पास 2 5 आ गया और 2 6 आ गया, तो सम मेरा 22 बना, राइट और नॉट. 2 5 आ गया और 2 6 आ गया, राइट. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, राइट. राइट. 2 5 ओके. सपोज इससे पहले तुमने अगर ऐसा कुछ सोचा होता ना, अगर तुमने इससे पहले जो है ना ऐसा कुछ सोचा होता, इफ यू गाइस हैव थिंक लाइक दैट अगर मैं 3 5 ले लूं और एक से, तो इसका सम भी मैक्सिमम 21 होता है, तो ये भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था. तो मेरे लिए सबसे पहला केस जो है, केस 1 जो है मेरे लिए, आई शुड गेट 2 5s एंड 2 6s, आई शुड गेट 2 5s एंड 2 6s. तब मेरा सम जो है, तब मेरा सम जो है वो 22 आता, तब मेरा सम जो है 22 आता, राइट और नॉट. ये इतनी बात समझ में आ गई, यस और नो. बट अब आप देख रहे हो 5 5 6 6, मतलब आपके पास 4 डाइस है ना, तो कोई भी 2 पोजीशन पे 5 और कोई भी 2 पोजीशन पे 6. सो आउट ऑफ दिस 4 पोजीशन आई हैव टू सिलेक्ट 2 पोजीशंस for some 2 position for 5, and out of this 4 position I have to select 2 position for 6. So this will be 4c2 into 4c2, right. आपका ऐसा भी तो हो सकता है ना, 5 6 5 6, ऐसा भी तो तुम बोल सकते हो, 6 6 5 5, ऐसा भी तो तुम बोल सकते थे ना, राइट और नॉट, राइट. So for that thing, what you have to do, you have to arrange this thing, you have to arrange. So total 5 5 6 6 की arrangement. So that means what, just select 2 position or arrange these 2 numbers in this way, राइट और नॉट. अरेंज, या तो तुम इसका अरेंजमेंट कर लो, 4 नंबर्स है, इसका अरेंजमेंट कर लो, सिंपल चीज है ये, ठीक है. दैट यू, सो 4c2 into 4c, तो ये दैट इज आल्सो करेक्ट. 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये सेम ही आंसर हो जाएगा ना दर्शन, 4 फैक्टोरियल. सो अगर आप देखोगे, सो ये हो जाएगा मेरा पास 4 into 3, this is my 4 into 3 divided by 2 factorial, divide by 2 factorial, multiply by 4 into 3 divided by 2 factorial, राइट और नॉट, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. सो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता, और ये 2 और इधर से कैंसिल हो जाता, तो तुम्हारे पास आ जाता ये कितना आ जाता, 2 3s are 6, 2 3s are 6. Again you are how many numbers you will get, how many numbers you will get, over here you will get 36 numbers. Okay, over here you will get 36 numbers, करेक्ट और नॉट, यस और नो. बताइए मुझे, समझ में आया सबको, यस और नो, राइट और नॉट, राइट. क्लियर. ओके, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो दैट ओके, करेक्ट बोला ये, राइट राइट और नॉट, राइट और नॉट. एक ही 4c2 लिखना पड़ेगा. क्यों एक 4c2 लिखूंगा मैं, बहुत ही अच्छा बोला यार, वेरी गुड, राइट. सो दैट वाज, मतलब मैं वही सोच रहा था, कुछ तो इधर मिस्टेक लग रहा है, कुछ तो इधर मिस्टेक हो रहा है. दैट इज वेरी गुड, वही चीज मैं देख रहा था. सो प्रशांत हैज टोल्ड मी एंड दे रिमाइंड मी कि अगर मैं 5 की पोजीशन फिक्स कर लूं ना, तो ऑटोमेटिकली 6 जो 2 पोजीशन बाकी होगी वहीं पे रखना पड़ेगा ना, तो उसके पोजीशन थोड़ी हम सिलेक्ट करेंगे, राइट और नॉट. सो दैट इज वेरी गुड प्रशांत. तो मैं क्या करूंगा, पहले 6 की पोजीशन फिक्स कर दूंगा, या 5 की पोजीशन तुम फिक्स कर लो, वो तो मेरा 4c2 के बराबर ही होगा. सो दैट विल बी 4 into 3, दैट विल बी व्हाट, माय 4 into 3, मेरे पास हो जाएगा 4 into 3 divided by 2, तो ये कैंसिल होके देयर आर टोटल 6 केसेस आई विल गेट, देयर आर टोटल 6 केसेस आई विल गेट, राइट. एंड केस 2 मेरा ऐसा हो सकता है, केस 2 मेरा ऐसा हो सकता है कि अगर तुमने 3 बार 6 ले लिया, तो एक बार आपका 4 लेना पड़ेगा. 3 बार 6 ले लिया, तो एक बार आपका 4 लेना पड़ेगा आप लोग को. सो दैट विल गिव मी, दैट विल बी गिव मी, देयर आर टोटल, मैं 6 की पोजीशन फिक्स कर लूंगा. मैं आउट ऑफ दिस 3, out of the 4 places I am selecting the 3 position for 6, so that will be 4c3, and 4c3 is equal to 4c1, 4c3 is equal to 4c1, so I will get over here 4. So either it can be case 1, either it can be case 1 or case 2, right. आपका case 1 भी हो सकता है, या तो आपका केस 2 भी हो सकता है. सो केस 1 में टोटल फेवरेबल मेरे पास केसेस है 6, और केस 2 के अंदर टोटल फेवरेबल मेरे पास है 4 केसेस. सो अगर मैं ओ और लिख रहा हूं, तो आपको 6 + 4 करना पड़ेगा, और मैं इधर टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मेरे हो जाएंगे x = 10.
मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड करनी इधर, मुझे फेवरेबल केसेस फाइंड करना है गाइस। आई वांट टू फाइंड फेवरेबल केसेस, एक्स आपको फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी होता तो ऑब्वियस बात है 10 डिवाइडेड बाय 1296 आ जाता, वो आपका आंसर हो जाता, 10 डिवाइडेड बाय 1296, राइट। सो आई होप यू गाइस गॉट क्लियर इन दिस, राइट। आपको समझ में आया ये बात? सब लोग को बताइए मुझे, चलो ये बात सबको समझ में आया, यस और नो, राइट और नॉट? चलिए इस बात को एकदम समझ में आ गया सबको, राइट? ओके, ऑल क्लियर नाउ, ऑल क्लियर, ओके। चलिए बताइए मुझे प्लीज, चलो वेरी गुड गाइज। सो दिस वाज योर आंसर। आई वांट द फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, राइट। 466 इंक्लूड होगा, यस ऑब्वियसली होगा, मैंने कहा ना बोला, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन क्यों किया मैंने, मल्टीप्लीकेशन में अब तो ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन करने का काम मैंने किया ही नहीं है, मल्टीप्लीकेशन इधर एक्चुअल में जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, यस और नॉट, यस और नो, ठीक है, राइट। ओके ग्रेट, ठीक है 100, ओके चलिए समझ में आ गया सबको, यस और नो, समझ में आ गया ना ये चीज, राइट गाइस? ओके सो गाइस आज के लिए मैंने बोला था आप लोग को, सो टुडे इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू 8:30 एंड आई हैव सम अर्जेंट वर्क टुडे। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक दिस हाफ एन आवर एक्स्ट्रा इन सम अनदर क्लास, जब हम क्लास लेंगे। बट टुडे दिस कंप्लीट्स योर बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में आप लोग को इतने क्वेश्चंस का ध्यान रखना है, ठीक है। एंड नाउ व्हाट आई विल डू, फ्रॉम द इवनिंग क्लास आई विल स्टार्ट विद द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गाइस। वो आपका इवनिंग क्लास से स्टार्ट हो जाएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो वहां पे हम लोग बेस थियरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थियरम, वो सारी चीज देखेंगे, ठीक है। वो सारी चीज हम लोग वहां पे देखेंगे। एंड देन वी कैन स्टार्ट ऑफ विद, देन ऑन संडे, दैट इज फॉर टुमारो, we will start with the random variables, right? So there are also very important topic, right? सो हम लोग इस हिसाब से मैंने सेशन को डिवाइड किया हुआ है, राइट। सो अभी मैं आपको सारी पीडीएफ जो है ना, अभी लेक्चर खत्म होते ही मैं आपको सारी पीडीएफ जो है ना वो शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। आज अभी के अभी मैं आपको अभी शेयर करके दे देता हूँ, राइट। सो यू गाइस कैन रिवाइज इट वंस मोर। ओके गाइस, सो आप लोग को ये गेट प्रीवियस ईयर से ना, आप लोग को बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एक टॉपिक रहता है, उसके ऊपर से जो क्वेश्चंस होंगे ना वो सारे आ जाएंगे, राइट। सिर्फ बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, अभी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थियरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थियरम, वो बाकी है। वो सारी चीज आज इवनिंग के क्लास में हो जाएगी, फिर आप उसके भी क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। समझ आ रही है बात? सो सिंपल से प्रोबेबिलिटी से आप लोग का, ये आप लोग का हो जाएगा, ठीक है, सिंपल प्रोबेबिलिटी से। क्लियर है बात? क्लियर है गाइस? शिवम मैं वेक्टर का पीडीएफ बना दूंगा, आई वांट टू जस्ट स्कैन, मुझे उसका स्कैन करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। ये प्रोबेबिलिटी का अभी आपका पीडीएफ जो है ना वो अभी आ जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। मैं वो स्कैन करके तुम्हें वेक्टर का पीडीएफ भी दे दूंगा ना, राइट और नॉट? आई विल गिव यू दैट पीडीएफ आल्सो गाइस, ठीक है। मैंने शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में वेक्टर को लिखा हुआ है, तो जस्ट रिमेंबर ओनली दैट थिंग एंड यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट, ठीक है। तो वहां से मिल जाएगा आपको। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए हम लोग इधर रखते हैं, और फिर हम लोग आज इवनिंग के क्लास में प्लीज सब लोग अटेंड करना इवनिंग का क्लास, राइट, बिकॉज दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम, ठीक है। सो आप लोग सब लोग अटेंड करना पूरे वो क्लास को, तो आपकी जो भी आप लोग का प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो भी आपका बच गया था, छूट गया होगा, या आपको समझ में नहीं आया होगा, वो आपको इजीली समझ में आएगा शाम के क्लास में, ठीक है। चलिए, okay guys, thank you very much guys, thank you very much, I am leaving now, right? Okay, bye guys.